channel Adhigam Yukti. This is Vaishali Garg. I hope you all are doing well. So, in my last session, we have studied about basics of inequalities. I hope you have all liked that video and understood the concept. तो हमको अपना कुछ नया आज हम उस चीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस. बट उससे पहले हमने जो अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था, लेट अस गेट अ क्विक रिव्यू ऑफ दैट. So, what we have discussed in our first session, it was about inequalities. We have stated that there are three basic symbols. What were they? Less than, greater, and equals to. These three are our basic symbols which forms our inequalities. We have also stated that how we use the signs differently. We have stated that greater and equal are given the first priority. Then our greater and equals to and less than equals to are given second priority, and then our equals to sign is given third priority. So in this sequence we give the priority and we are able to solve our inequalities. Since if we are having three signs in a sequence like this, greater, equals to and equals to, so which sign will be given priority? This sign will be given priority. Suppose if we are not having this sign, we are having only greater than equals to and equals to, then we will give priority to this symbol. Now if at last we are having only equals to signs, then equals to we will be given the priority. So this was there, we have studied in our last session. I hope you all have understood the concept very well. Since your inequality forms a major portion, आपका जो inequality है वो आपके banking, railways, even in your teaching exams also, it forms a very important portion. Inequality से आपके बहुत सारे questions आ सकते हैं. Like, so today we will discuss कि आपके inequality से किस related किस तरह से question बनते हैं and how they used to get solved. So let us discuss one question. See, question कैसे आता है? Question ऐसे आएगा, आपको question में एक statement दे दी जाएगी and what will be the statement? Statement suppose it is B is greater than A, greater than equals to T, greater than F, equals to Y, less than equals to S and less than D. इस तरीके से आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी. दिस इज योर इनइक्वालिटी स्टेटमेंट. आफ्टर दैट द एग्जामिनर विल गिव यू सम कंक्लूजन्स रिगार्डिंग टू योर स्टेटमेंट. सपोज योर फर्स्ट कंक्लूजन इज F is less than D and second conclusion is A is greater than S. ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन हुआ F is less than D and second A is greater than S. तो आप लोगों को बताना है कि वेदर फर्स्ट कंक्लूजन सही है या सेकंड कंक्लूजन सही है या आपके दोनों कंक्लूजन सही है या दोनों में से कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है. तो क्वेश्चन कैसे आएगा? ए ऑप्शन होगा कंक्लूजन वन इज ट्रू. बी कैसे आएगा? कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू. सी conclusion 1 and second both are true. And D will be none of the conclusion is true.
होगा कि आपको जो कंक्लूजन्स दिए हैं यू हैव टू चेक वेदर दे आर ट्रू और नॉट। तो लेट्स सी, हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है f इज लेस देन d। सो व्हाट विल बी अवर फर्स्ट वर्क? सबसे पहले हम क्या करेंगे, f और d के बीच के सिंबल्स चेक करेंगे। वी विल सी कि f और d के बीच क्या कोई रिलेशन है, और अगर रिलेशन है तो किस सिंबल से रिलेटेड उसके पास रिलेशन है। सो वेयर इज अवर f? f is here and where is d? d is here. Now अब f और d के बीच कितने सिंबल्स हैं? इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड लेस देन। अब आपका जो लेस देन इक्वल्स टू है एंड लेस देन है, दोनों की ओपनिंग राइट हैंड साइड हो रही है। इसका मतलब यह है कि आपका f और d के बीच रिलेशन है। अब बात यह आती है कि रिलेशन कौन सी होगी। अब हमने जैसे पढ़ा था कि हमारा जो लेस देन साइन होता है, इट इज गिवन मोर प्रायोरिटी देन अदर सिंबल्स, सो वी कैन से दैट आवर f इज लेस देन d। सो दिस, यही आपका फर्स्ट कंक्लूजन कहता है, तो इसका मतलब आपका फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट। नाउ let us check our second conclusion. It is about a and s. Now see where is a? a यहाँ पर है और s कहाँ पर है आपका? s यहाँ पर है। see, ये रहा आपका a and this is your s। अब a और s के बीच के सिंबल्स चेक करते हैं। see, पहला है ग्रेटर देन इक्वल्स, ठीक है, ग्रेटर देन योर इक्वल्स, ठीक है। नाउ इट कम्स योर लेस देन इक्वल्स। अब हम क्या देखेंगे कि जो पहले दो सिंबल्स थे उनकी ओपनिंग थी लेफ्ट साइड में, लेकिन y के बाद जो सिंबल आया उसकी ओपनिंग हो गई आपकी राइट साइड में। तो जब दोनों ही अपोजिट साइड सिंबल्स की ओपनिंग अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तब उनके बीच कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि a और s के बीच कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आपका सेकंड कंक्लूजन इज रॉन्ग। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन ए इज कंक्लूजन वन इज ट्रू, बी कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, सी कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू, डी नन ऑफ द कंक्लूजन इज ट्रू। हमने क्या देखा, हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही था लेकिन सेकंड गलत था, तो इसका मतलब हुआ आवर कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। So our answer will be option number A. इस तरीके से आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लेट अस मेक इट मोर क्लियर बाय सम अदर एग्जांपल्स। Let me change the statement and hence its conclusions also. अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको दिया है y इज लेस देन o, लेस देन इक्वल्स टू g, लेस देन इक्वल्स टू k, इक्वल्स टू u, ग्रेटर देन l एंड ग्रेटर देन p। ये आपको स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन में, ये आपको स्टेटमेंट दी है इनइक्वालिटीज की। नाउ व्हाट आर द कंक्लूजंस गिवन? फर्स्ट कंक्लूजन इज u is greater than o and second conclusion दिया है आपको k is greater than y। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हम u और o को देखेंगे कि उनके बीच किस तरह की रिलेशन है। नाउ वेयर इज अवर u? u यहाँ पर है, o आपका यहाँ पे है, तो सबसे पहला काम होगा कि हम u और o के बीच के सिंबल्स को चेक करते हैं। तो देखते हैं o less than equals, okay, second is less than equals and third symbol is equals to। अब हमने देखा कि दोनों सिंबल्स की ओपनिंग एक साइड है, इसका मतलब है कि o और u के बीच कोई ना कोई रिलेशन है। अब आपका सेकंड काम होगा कि आपको यह पता करना है कि o और u के बीच रिलेशन कौन सी है। सी, अब यहाँ पे सिर्फ आपको दो टाइप के सिंबल्स दिए हैं, लेस देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारा लेस देन इक्वल्स टू इज मोर प्रायर देन योर इक्वल्स टू, तो हम अपने लेस देन इक्वल को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे इक्वल्स टू साइन से। अब जो सिंबल है आपका, इट मींस दैट o
इसकी टिप है आपकी O की साइड, सो इट विल बी लाइक दिस एंड इट विल बी लेस देन इक्वल्स टू U. नाउ सी व्हाट इज आवर कंक्लूजन इज सेम. दिस इज द बोथ थिंग्स आर सेम, दोनों चीजें सेम बात बता रही है दैट योर O इज ग्रेटर इक्वल्स टू O and we have also concluded that O is less than equals to U, which means that U is greater than equals to O. So इससे क्या हुआ, हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हमारा सही निकल के आता है. नाउ लेट अस चेक अपना सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, K और Y. नाउ K कहां पर है आपका, K ये रहा एंड वेयर इज योर Y, Y इज हियर. तो अब आपका सबसे पहला काम होगा यह पता करना है कि K और Y के बीच रिलेशन है या नहीं है. सी first sign is great less than, okay, second is your less than equals to, third है आपका less than equals to. अब आपने देखा तीनों सिंबल की ओपनिंग्स आपकी राइट साइड हो रही है, इसका मतलब है y और k के बीच रिलेशन है. अब क्या रिलेशन है दैट वी हैव टू फाइंड. less than equal. अब जैसे हमने पढ़ा था कि हम कौन से सिंबल को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, लेस देन को या लेस देन इक्वल्स को. इट विल बी अवर लेस देन, सो वी कैन से दैट y इज लेस देन k और वी कैन से दैट k इज ग्रेटर देन y. दोनों का मतलब सेम है. नाउ चेक करते हैं हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है. सेकंड कंक्लूजन कहता है दैट k इज ग्रेटर देन y और यही हमने कंक्लूड किया है. इट मींस कि हमारा सेकंड कंक्लूजन इज आल्सो राइट. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शंस. Option A says conclusion 1 is true. Option B says conclusion 2 is true. C conclusion 1 and 2 both are true. And D none of the conclusion is true. लेकिन हमारा तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्रू आ गए. Then our conclusion option number C conclusion 1 and 2 both are true will be the correct option. हमारा C ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन होगा जो हमने रिलेशंस फाइंड की है. आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ आया होगा. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोगों को कंसेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा. थर्ड लेट हमारी कोई स्टेटमेंट है A is greater than B, greater than equals to C and less than D. ये आपकी एक स्टेटमेंट है. नाउ देयर आर टू कंक्लूजन, इसके भी दो कंक्लूजन दिए हैं. एक कंक्लूजन कहता है A इज ग्रेटर देन C और सेकंड कंक्लूजन कहता है A इज इक्वल्स टू C. अब हमें चेक करना है कि A और C के बीच कौन सा कंक्लूजन सही है. C, अब A ये रहा आपका एंड C आपका यहाँ पे है, तो A और C के बीच रिलेशन है क्योंकि दोनों जो सिंबल्स A और C के बीच में है दोनों की ओपनिंग्स आपकी एक साइड में है. अब क्या रिलेशन है, A इज ग्रेटर और ग्रेटर लेस, सो ग्रेटर देन साइन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन. इन दोनों में सबसे पहले पोजीशन किसको देंगे, इस वाले सिंबल को देंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि A इज योर ग्रेटर देन C. सो दिस इज द ओनली रिलेशन बिटवीन A एंड C. A और C के बीच में सिर्फ एक यही रिलेशन बनती है दैट A इज योर ग्रेटर देन C. व्हाट इज योर कंक्लूजन 1? कंक्लूजन 1 भी यही कहता है दैट A इज ग्रेटर देन C. इसका मतलब कंक्लूजन 1 आपका सही हुआ. अब ऑप्शन बी क्या कहता है, A इज इक्वल्स टू C. अब जब एक रिलेशन बन गई है तो आपका सेकंड ऑप्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा रिलेशन तो नहीं हो सकती दोनों के बीच. हमने एक रिलेशन पता कर ली है कि A इज ग्रेटर देन C. अब एक रिलेशन है तो यही रिलेशन रहेगी. इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग देन विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, योर ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट. A आपका सही हो जाएगा. कंक्लूजन 1 इज ट्रू. I hope this question is clear to you. Now let us see our second next question.
स्टेटमेंट दी है एंड कंक्लूजन 1 है आपका y इज ग्रेटर देन b एंड सेकंड कंक्लूजन है w इज ग्रेटर देन u। तो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है दैट u इज लेस देन इक्वल्स टू v लेस देन w इक्वल्स टू x लेस देन y। दो कंक्लूजन्स हैं आपके, फर्स्ट है y और v के बीच, सेकंड है w एंड u के बीच। तो अब सबसे पहला काम क्या होगा, y और u चेक करते हैं कहाँ पे है। y ये रहा आपका एंड आपका v ये रहा। अब आपको पता करना है इन दोनों के बीच कैसी रिलेशन है तो नाउ लेस देन इक्वल लेस देन, दोनों साइन के दोनों सिंबल्स की ओपनिंग एक साइड है, इसका मतलब v और y के बीच रिलेशन है। अब क्या रिलेशन है, सी यहाँ पे सिर्फ आपके दो सिंबल्स यूज हुए हैं y और v के बीच में, एक तो ये सिंबल और एक आपका ये सिंबल। तो अब हमने जैसे पढ़ा था कि हमारा जो लेस देन और ग्रेटर साइन होते हैं हम उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन y एंड v, y इज लेस देन v इज लेस देन योर y, ये आपकी रिलेशन बन के आती है v और y के बीच में। अब हम देखते हैं फर्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं अपना। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है दैट y इज ग्रेटर देन v, और यही आपका हमने कंक्लूजन निकाला था कि y इज ग्रेटर देन v, सो वी कैन से दैट आवर फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट। इसका मतलब है कि आपका पहला कंक्लूजन जो है वो सही आया है। नाउ सेकंड कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, w एंड u। अब आपको देखना है w एंड u कहां पर है। ओके सी ये रहा आपका w एंड दिस इज योर u, w और u ये रहा। अब w और u के बीच के सिंबल्स चेक करते हैं, लेस देन इक्वल लेस देन, इसका मतलब है दोनों सिंबल्स की ओपनिंग राइट हैंड साइड है, दो सिंबल्स हैं इनके बीच। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कौन से सिंबल को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, इस वाले सिंबल को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो हमारी क्या रिलेशन निकल के आती है दैट u इज लेस देन w। वी कैन ऑल्सो से इट लाइक दैट, हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं दैट w इज ग्रेटर देन u। नाउ आपका सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, सेकंड कंक्लूजन ऑल्सो सेज द सेम थिंग। सेकंड कंक्लूजन में भी यही बात कही गई है दैट आपका w जो है इज ग्रेटर देन u, और हमने भी यही कंक्लूजन निकाला है that our w is greater than u, which means that our second conclusion is also correct। तो मतलब आपका पहला और दूसरा कंक्लूजन दोनों ट्रू निकल के आते हैं। Then what will be the option? It will be your option number C, which says that conclusion 1 and second both are true। Okay, I hope the question is clear to you। आपको समझ आया होगा कैसे हम conclusions के बीच conclusions चेक करते हैं and how we opt the options, हम options को कैसे choose करते हैं। This ये आपके पहला टाइप के क्वेश्चंस है, एक इस तरीके से आते हैं। क्वेश्चंस आपके और तरीके से भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक से चलते हैं कि क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं। Let us take one more example। Fifth, suppose you are given statement P is greater than L, less than M, less than N and greater than Q। ये आपकी स्टेटमेंट दी है। कंक्लूजन्स क्या क्या है, पहला कंक्लूजन कहता है P is greater than Q और सेकंड कंक्लूजन कहता है Q is greater than M। तो हम सबसे पहले पहला कंक्लूजन चेक करते हैं कि P और Q के बीच क्या रिलेशन है। सी ये रहा P और ये रहा आपका Q। अब सिंबल्स चेक करते हैं इनके बीच में कौन कौन से सिंबल्स हैं, ग्रेटर, फिर आता है आपका लेस देन इक्वल, फिर है आपका लेस देन एंड देन दिस। देखो चारों ये सब अपनी अपोजिट डायरेक्शन में ओपनिंग हो रही है सिंबल्स की, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो रही है, इसकी राइट हैंड साइड हो रही है।
इसकी फिर राइट हैंड साइड हो रही है एंड इसकी फिर से लेफ्ट हैंड साइड हो रही है, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है आपके सिंबल्स की ओपनिंग में। तो हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जब आपके सिंबल्स की ओपनिंग सेम साइड नहीं होती, जब सेम साइड नहीं खुलते होती आपकी ओपनिंग सिंबल्स की, तो हम उन दो अल्फाबेट्स के बीच रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते। इसका मतलब P और Q के बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन 1 इज रॉन्ग। तो हमारा P और Q के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। लेट अस चेक आवर सेकंड कंक्लूजन। इट इज Q एंड M। Q कहाँ पे? आपका Q ये रहा और M ये रहा। नाउ इन दोनों के बीच कौन कौन से सिंबल्स हैं? लेस देन एंड ग्रेटर। नाउ अब आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे भी आपकी ओपनिंग, एक फर्स्ट सिंबल की ओपनिंग आपकी राइट हैंड साइड हो रही है, दूसरे सिंबल की ओपनिंग लेफ्ट हैंड साइड हो रही है, दोनों अपोजिट साइड हो गए, दोनों सिंबल्स अपोजिट साइड्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि M और Q के बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो our conclusion second also get cancel out। सेकंड और फर्स्ट कोई भी कंक्लूजन आपका ट्रू नहीं है। देन व्हाट विल बी द ऑप्शन? ऑप्शन विल बी डी, नन ऑफ द कंक्लूजन इज ट्रू। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टेटमेंट के गिवन कंक्लूजन्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओनली थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए कि बेसिक में क्या है। तो आई होप आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। We will meet in our next session with new questions. Thank you everyone.